हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइज आज होगा हमारा लेग्स डे ट्यूसडे के दिन एंड इसमें हम सिर्फ 4 से 5 एक्सरसाइज मारेंगे। नॉट हैवी, नॉट लाइट वेट, ज़्यादा लाइट वेट और ज़्यादा हैवी भी नहीं जाएंगे एंड मीडियम मारेंगे और अपनी रेप रेंज पे थोड़ा सा हम फोकस रखेंगे आज के दिन। तो मिलते हैं अब वार्म अप के बाद। लेट्स गो। Don't you think we could be different if we could just take it slow, let it go, roll down all the windows, feel the wind rushing through, hear the music, take the groove. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend we're shy. Let's forget the 9 to 5, I just wanna feel alive. Take it slow, let it go, roll down all the windows. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend you're shy. Take it slow, let it go, take it slow, let it go, take it slow, let it go, take it slow, take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow, I'm chasing the afterglow. Dance with me while the beat finally got some clarity. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend we're shy. Let's forget the world outside, turn it up to overdrive. Take it slow, let it go, roll down all the windows. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend you're shy. Take it slow, let it go, 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 take it slow, let it go. So we will start our first set, first exercise, and the first set of this exercise we will do leg curls for the quad activation. एंड इसमें क्या होता है, अगर पहले मैंने आपको पहले भी बताया आपके फेवर में है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, बट आई लव टू डू लेग कर्ल्स फर्स्ट एंड देन स्क्वाट्स, क्योंकि मेरे क्वाड्स उसमें थोड़ा से पंप अप मतलब थोड़े से एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि लेग कर्ल्स आर मोस्टली फॉर द क्वाड्स एक्टिवेशन। एंड अगर आपको क्वाड्स एक्टिवेट अच्छे से हो जाएगा एंड यू विल डू मोर एफिशिएंट स्क्वाट रैप्स। तो इसको आप ध्यान में रखें और 1-2 बार आजमाइए आप अपने वर्कआउट स्प्लिट में एंड यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। Take it slow, let it go. Let's take a trip to uptown. Don't you wish we could be out of sight, out of mind? Take my hand, don't go slow, I'm chasing the afterglow. Dance with me while the beat finally got some clarity. Don't you know all I'll ever really wanna be is a connected high, you and I, pinnacle, climactic vibe. Show me yours, I'll show you mine, you don't have to pretend we're shy. Let's forget the world outside, turn it up to overdrive. Take it slow, let it go, roll down all the windows. So after finishing the leg curls we will do the squats, और स्क्वाट्स में हम विद 60 kg जाएंगे स्टार्टिंग में एंड दैट इज़ ऑप्टिमल फॉर मी। यू विल डू हेवियर, और मतलब जो जितना आपसे हो पाए हेवियर, और इससे कम अगर, क्योंकि 3 सेट हमें निकालने हैं और थर्ड सेट जो हमारा होगा नॉट अ PR बट वी विल डू आवर बेस्ट टू पुल इट ऑफ। ठीक है, जितना हो सके आपको उतना वेट उठाइए, बट द मेन फोकस इज़ कि आप अपनी क्वाड्स को एंगेज कीजिए, अपने हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज कीजिए एंड अपने ग्लूट्स को। और इसमें ये आप ध्यान रखें कि आपकी फॉर्म जो करेक्ट हो। ठीक है, चेस्ट अप, हेड अप, और जो है एक बैक में आर्च होना चाहिए और प्रॉपर एक लाइन में आप ऊपर नीचे हो जाए। इफ़ यू हैव द स्मिथ मशीन इन योर जिम दैट्स बेटर। स्मिथ मशीन पे आप कर सकते हैं क्योंकि एक फिक्स पाथ है एंड आप उसमें अलग अलग वेरिएशंस भी अपना सकते हैं उसमें। एंड वी विल डू द 3 sets. First set have the 60 kg weight, second set have 80 kg, and third set we will do with the 100 kg with support. Okay, support के साथ स्पॉटर को रखेंगे, और अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो हम सपोर्ट लेने में हिचकिचाएंगे नहीं।
So after finishing this, we will do the leg press and leg press for quads activation. And for the quads, we meant to say कि हमें only focus करना है quads पे. Hamstrings पे हम इसलिए ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लास्ट पे कर्ल्स कर लेंगे और इस कर्ल्स के बाद फिर हम देखते हैं कि कुछ एक और एक्सरसाइज करेंगे, 1 या 2 एक्सरसाइज मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। और हम इसमें फर्स्ट जो वेट है हमारा वो 140 kg है इसमें। एंड 140 kg के साथ हम फर्स्ट सेट करेंगे, जितने रेप्स निकले उतने। एंड आफ्टर दैट वी विल इंक्रीज़ द वेट अकॉर्डिंगली फ्रॉम 20 kg to 40 kg मे बी ऑन बिटवीन ऑन देम, ठीक है। उनके बीच में कुछ भी वेट हम चूज़ कर लेंगे और 3 सेट मारेंगे। और वैसे ऑप्टिमली 20 से 40 kg वेट कैटेगरी में हम इसको ऊपर वेट हर एक सेट में लेते जाएंगे। एंड आप उतना ही इसमें वेट लीजिए जितना आपको कंट्रोल हो पाए, और आराम से बिना सपोर्ट, मतलब अपने हाथों को अपनी टांगों पे ना रखें, क्योंकि इस पे ये होता है कि आप बैक ऑफ द माइंड सोचते हैं कि अब नहीं उठने वाला तो हम अपने हाथों से ज़ोर मारेंगे। ये नहीं करना है आपको, उतना ही वेट उठाइए जितना आप हैंडल कर सकें। एंड इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप आगे वेट को पुश करते हैं तो अपनी नीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट आउट ना कीजिए। देखिए, मैं लाइट वेट से तो कुछ नहीं होगा, बट आप अगर आपकी हड्डियां कमज़ोर होंगी एंड जॉइंट्स कमज़ोर होंगे तो फॉर श्योर इंजरी का ख़तरा है, और इंजरी नहीं तो फिर पेन का ख़तरा है, और पेन फिर बाद में एक हेवी इंजरी और बिग इंजरी में उसको कन्वर्ट होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको आराम से एक कंट्रोल्ड मैनर में कीजिए लेग प्रेस को, और 3 सेट्स काफ़ी हैं इसके क्वाड एक्टिवेशन के लिए। एंड वी आर गुड टू गो। आफ्टर लेग प्रेस वी विल डू द लेग कर्ल्स। लेग कर्ल्स हम हैमस्ट्रिंग्स के लिए करेंगे, और इसमें हम उतना हेवी नहीं जाएंगे। द मेन फोकस ऑन द जो एक्सरसाइज है वो है बल्किंग। एंड बल्किंग में हमें उतना ज़्यादा वो कटिंग के लिए, मतलब कटिंग में हमें क्या करना होता है, एक प्रॉपर वेट को फिक्स्ड लाइन ऑफ मोशन में हमें कैरी करना होता है। बट इन बल्किंग यू हैव टू जस्ट ब्रेक यूर मसल इनटू माइक्रो टेयर्स, ओके। इसमें अगर आप अपनी मसल को माइक्रो टेयर्स करेंगे तो यू आर गुड टू गो। बट अगर आप उसको ज़्यादा फटीग करेंगे, ज़्यादा उसको करेंगे तो अगर आपकी डाइट प्रॉपर ना होगी तो आप कटिंग में जा सकते हैं, तो बल्किंग का आप सोचें ही मत। तो इसीलिए हम एक फिक्स्ड वेट को नहीं रखते हैं इसमें। वी आर जस्ट इंक्रीजिंग द वेट ऑन ईच सेट, ठीक है। जितना हो सके उतना करें, और जितने रेप्स हमसे हो सकें उतने ही रेप्स। वी आर नॉट द पावर लिफ्टर्स, वी आर नॉट द बॉडी बिल्डर्स, वी आर द बल्कर्स, ओके। तो बल्क करने के लिए आपको वेट इंक्रीज़ और रेप्स पे आपका फोकस रखना होगा। और मिनिमम जो सेट्स के दौरान आप रेस्ट लीजिए, वो मिनिमम टू मिनिमम 1 minute 25 seconds इट्स इनफ, ठीक है। 1.5 मिनट आपके लिए इनफ है। और उसके बाद आप सेट कीजिए, आप देखिए आप में कितना फ़र्क आएगा, आपकी मसल में, आपके माइंड मसल कनेक्शन में कितना फ़र्क आता है। अगर ऐसे नहीं होगा तो एक टाइमर लगा दीजिए, जैसे आप सेट ख़त्म कर दीजिए टाइमर को ऑन कीजिए, और 1.5 मिनट ख़त्म होते ही आप फिर से अपने सेट पे जा सके। अगर आप किसी के साथ करते हैं, जिम ब्रो है आपका, तो उसको बोलिए कि 1.5 मिनट में आपका सेट ख़त्म होना चाहिए। लेग कर्ल्स के बाद हम अपनी जो 5th गेम है वो होगी हमारे लिए काब्स हमने पिछले हफ्ते ट्रेन नहीं की है बिल्कुल भी, और इस हफ्ते हम छोड़ नहीं सकते। तो इसमें हमने 20 kg का वेट रखा है लेग प्रेस पे, और इसकी लेग प्रेस के बॉटम हाफ पे हमने अपना जो टो है उसको अच्छी तरीके से सेट करके उसको पुश कर रहे हैं। और इसमें आप उतनी टेक्निक नहीं लगा सकते हैं, लगानी है तो लगा सकते हैं, बट आपको ज़्यादा जब पुश करते हैं टोज़ के साथ तो तभी आप उसको होल्ड कीजिए वहाँ पे फॉर अ सेकेंड और हाफ अ सेकेंड, तो वो काफ़ी है आपके काफ्स के लिए। तो इसमें 2 सेट हम मारेंगे, और 2 सेट के इसके बाद जो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होती हैक स्क्वाट। बट हैक स्क्वाट की मशीन यहाँ इस जिम में अवेलेबल नहीं है, तो हम केबल के साथ हैक स्क्वाट मारेंगे।
this is the way that you can train all your hamstrings and the quads for the most activation. देखिए मैं quads पे इतना ज़ोर क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि जो मेन जो आपका स्ट्रेंथिंग पोर्शन होता है वो हैमस्ट्रिंग्स होती है, बट quads को बहुत सारे नेगलेक्ट कर देते हैं. तो quads को मैं एक वीक में एक बार मैं ज़रूरी quads जो होती है पे फोकस करता हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज उस पर ही करता हूँ. एंड द नेक्स्ट इज़ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसी हफ्ते में आती है तो उस पर मैं हैमस्ट्रिंग्स एंड quads दोनों को ट्रेन करता हूँ. उस दिन मैं quads को थोड़ा सा रेस्ट, मतलब उतना ज़्यादा खींचता नहीं हूँ, क्योंकि रिकवरी भी ज़रूरी है. एंड अगर रिकवरी नहीं होगी तो हम उसको पुल ऑफ नहीं कर पाएंगे अगले जब हमारी एक्सरसाइज उस स्प्लिट का हमारा दिन आएगा तो हम उसको उतनी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पाएंगे. और इसमें हम जो फ्रंट हैक स्क्वाट है उसको हम सिर्फ 2 ही सेट मारेंगे एंड इट्स इनफ फॉर द डे. एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और कुछ भी आपको सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में. एंड टेल मी व्हाट आई हैव टू डू फॉर द कंटेंट एंड कैसे मैं बेटर कर सकता हूँ और ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ. आप मुझे कमेंट में बताइए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो भी मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि ये चीज़ें आप ठीक कीजिए. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.